Students, in my previous class, I discussed some questions of the chapter triangle. Today, I am going to discuss some another question of the chapter triangle. Okay. Now, the first question is ABC is an isosceles triangle, right angle at C. Then prove that AB square is equals to 2AC square. Okay. AB square is equals to 2AC square. Now, firstly, draw an triangle which is ACB. Okay, right angle at C. Okay. Now, here given that triangle ABC is an isosceles. ABC is an isosceles, and angle C is 90 degree. And as we know that if triangle ABC is an isosceles, it means AC is equals to BC. Okay, AC is equals to BC. Now prove that AB square is equals to 2AC square. Clear? Then prove. Students, as we know that triangle ABC is a right angle triangle at C. Okay, it means by Pythagoras we can say that AB square is equals to AC square plus BC square. Clear? And the value of AB, we know that here AC is equals to BC. Now put the value. Then AB square is equals to AC square plus AC square. Okay. Then AB square is equals to AC plus AC 2AC square. This is your final answer. Clear? The next question is a triangle ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. If AB square is equals to 2AC square, then prove that ABC is a right angle triangle. Okay. Now, here let's see the solution. Firstly, draw a triangle ABC. A triangle ABC. Okay. Now, students, here given that AB square is equals to 2AC square. Okay, we can write it AB square is equals to AC square plus AC square, because AC plus AC square is equals to 2AC square. Now we know that given value is AB square is equals to AC square plus AC square, and given AC is equals to BC. This is given that AC is equals to BC. Now put the value. We get AB square is equals to
plus BC square. Okay. Then AB square is equals to AC square plus BC square. AB square is equals to AC square plus BC square. It means angle C is a right angle and hence triangle ABC is a right angle triangle. Okay. The next question is, students, this is very important question for the exam, board exam. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equals to half of BC. Then prove that 9AB square is equals to 7AB square. Okay. Then firstly draw the diagram. A triangle ABC. ABC. Draw a perpendicular this is E and D is a point. D is a point on BC. Okay. Now this is perpendicular. Now students, here let ABC is a equilateral triangle of side A. Okay. The side of triangle equilateral is A. And it means AB is equals to BC is equals to CA is equals to A. Clear? Now students, here and AE is an altitude of triangle ABC. AE be the altitude of triangle ABC. Okay. Now here, as we know that BE is equals to EC. BE is equals to EC. BE is equals to EC, which is half of BC, and the value of B is this is A by 2. Okay, means this is A by 2. Clear? Now students, here given that firstly students, if this is a triangle ABC, equilateral triangle, okay, then we know that the height of the equilateral triangle means h is equals to A root 3 by 2, where A is the side. Okay, we use this formula. Then here height is AE. Height is AE, means AE is equals to
BD is equals to 1/2 of BC. BD is equals to half of BC. Actually students here 1/3. BD is equals to 1/3 of BC. Okay. BD is equals to 1/3 of BC and BC is A. It means BD is A by 3. This is A by 3. Okay. Means BD is equals to BC by 3 means A by 3. Okay. Now find the value of DE. What is DE? So DE is equals to, see the diagram, DE is BE minus BD. BE minus BD. Okay. And BE is A by 2. Put it the value of BE and BD. BD is A by 3 minus A by 3. Now solve it. After taking the LCM, we get LCM 6. This is 3A minus 2A. Then DE. DE is equals to A by 6. DE is equals to A by 6. Now in triangle ADE, angle E is a right angle triangle. Is a right angle triangle. Okay. Now if this is right angle triangle, it means AD square is equals to DE square plus AE square. Now put the value. What is the value of DE? A by 6. A by 6 whole of square plus AE. AE is A root 3 by 2. A root 3 by 2. Clear? Then it is A square by 36 plus 3A square by 4. Okay. Now solve it. We get AD square is equals to, LCM is 36. This is A square plus, this is 9 4s are 36 and 9 into 3, 27. 27 A square. Okay. Now it become AD square is equals to 28A square upon 36. Okay. Now students, after cross multiplication, when we cross multiply it, we get 36 AD square is equals to 28A square. And as we know that A is the side of triangle, means we can write it AB in place of A. Okay. Then it becomes 36 AD square is equals to 28 AB square. Clear? Now students, 7 4s are 28. Sorry, this is cancelled out from the 4. 4 9s and 4 7s means 9 AD square is equals to 7AB square. This is your solution. Okay. So this is the next question, and it is also very important questions. In triangle ABC, a right angle triangle at C, a triangle ABC right angle at
A, CA is B, and AB is equals to C. Okay, actually this is C. AB is equals to C. If P be the length of perpendicular from C on AB, then prove that this. Okay. Then firstly draw the diagram. Let this is a right angle triangle. A, B, C. Right angle at C. Here, this is given that this is A, this is C, and this is D. Okay. Now, draw a perpendicular from C. This is a perpendicular C on AB, where and the length of perpendicular is P, and this is D. Okay. Now let's see the solution. Here, students, CD perpendicular on AB. Okay, this is given there, and CD is P. CD is equals to P. Then if we find the area of triangle ABC, then as we know that area of triangle is 1/2 base into height. Okay. Now here base is AB, 1/2 base is AB, and height is CD. Okay. Put the value. Then 1/2 AB. AB is B and height CD is P. Okay. Then we get 1/2 half. Students, here actually this is B and C. This is C angle and this is side C. Okay. Then AB is C and CD is P. Then we get half of C. Okay. Now again area of triangle ABC. Then 1/2 base. Now here the base is BC and height is AC. Put the value. Half BC is A and AC is B, means AB by 2. Okay. This is equation number 1 and this is equation number 2. As you know that this is area of triangle ABC, it is also area of triangle ABC. Then from equation number 1 and 2, half of CP is equals to half of AB. Then CP is equals to AB. Okay. This is first. CP is equals to AB. Now students, again let this equation number 3. Okay. CP is equals to AB. This is equation number 3. Okay. Now again in triangle ABC. In triangle ABC.
applying Pythagoras here, C is 90 degree, then AB square is equals to BC square plus AC square. Clear? Now put the value of AB, BC and AC. AB is C square is equals to A square plus AC is B square. And find the value of C here from the equation number 3. Then C is equals to AB upon P. Okay? Then from equation number 3, this is AB upon P. Okay? C is equals to AB upon P. And A square plus B square. It becomes A square B square upon P square is equals to A plus B square. Okay? Now students, here if we multiply both sides A square B square. Okay? So they divide. Then it becomes A square B square upon P square. Here 1 upon A square B square. This is A square B square plus B square A square B square. Then we get 1 upon P square is equals to 1 upon B square plus 1 upon A square, which is 1 upon P square is equals to 1 upon A square plus 1 upon B square. This is your final answer. Okay students? Now that's all for today. This is the last class of the chapter triangle. Okay? We will discuss the next chapter in my next class. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय हिंदी। बच्चों, आज पुनरावृत्ति के अंतर्गत मैं सोमा तिवारी आपको सूरदास के पदों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये रिवीजन वर्क आपका चल रहा है, तो बहुत ध्यान से आप व्याख्या को पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में व्याख्या काव्यखंड के अंतर्गत अवश्य आती है। तो सबसे पहले सूरदास के पद संख्या 1 की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदम ते पाई। सूरदास जी का ये पद जो है वो वंदना पद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सूरदास जी ने क्या की है? वंदना की है। वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। राई का मतलब होता है बच्चों जी, हरि माने होता है विष्णु। विष्णु के अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी क्या कहते हैं? कैसे लिखेंगे आप व्याख्या? लिखेंगे, प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। लंघ माने होता है लांग जाता है, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरि माने होता है पर्वत। जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति की पर्वत लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई माने होता है दिखाई देने लगता है। और जिस
दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो मतलब बहरा, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने होता है गरीब, याचक, और गरीब जो है राजा के समान सिर पर छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो करुणा से युक्त हैं, बार बार बंदहूं तेरी पानी, मैं बार बार उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। फिर से एक बार बच्चों इसकी व्याख्या देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरदास परीक्षा की दृष्टि से। चरण कमल बंदो हरि राही, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा होने पर, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा मात्र होने पर, पंगु माने क्या बताया बच्चों? लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने क्या बताया मैंने? पर्वत, जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने होता है गरीब या याचक, और याचक जो है वो सिर पर छत्र को धारण करके राजा के समान चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो करुणा से युक्त हैं, बार बार बंदहूं तेरी पाई, मैं बार बार उनके चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो बच्चों इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। व्याख्या करना भी मैंने आपको बताया होगा। तो व्याख्या किस तरह करते हैं आप लोग? सबसे पहले ये तो जो है हाशिया होता है, इसके बाद सबसे पहले आप बच्चों क्या डालते हो व्याख्या करते समय? संकेत। संकेत लिखना आता होगा आपको। संकेत के बाद क्या डाला जाता है? संदर्भ, और संदर्भ के बाद क्या आता है? प्रसंग। प्रसंग के बाद कौन सी हेडिंग पड़ती है बच्चों? व्याख्या। और व्याख्या के बाद जो अंतिम हेडिंग पड़ती है वो पड़ती है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, और इसके कई पॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट्स होता है भाषा। भाषा, सूरदास की जो भाषा है बच्चों वो है ब्रज भाषा। भाषा के बाद आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो भाषा, फिर लिखेंगे रस। अब जब हम इस पद को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा रस है? भक्ति रस। तो रस कौन सा होगा बच्चों? भक्ति रस। इसके बाद बच्चों आता है छंद। तो सूरदास की जितने भी पद हैं वो सब गेय पद हैं। तो छंद कौन सा होगा बच्चों? गेय पद। और छंद के बाद अगला पॉइंट पड़ता है अलंकार। अब देखिए अलंकार में चरण कमल, ये रूपक का उदाहरण है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक। इसके बाद देखिए बच्चों राई, दर्शाई, धराई, पाई, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। और जैसे ये शब्द आया है बार बार, बार बार, यहां पर बच्चों होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ कौन सा और अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद आप डालोगे शैली। शैली जो है बच्चों यहाँ पर मुक्तक शैली है। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली। और इसके बाद आप डाल सकते हो गुण। तो बच्चों
जहां पर भक्ति रस होता है वहां पर गुण हमेशा प्रसाद होता है। तो कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण। और यदि आपको कोई ऐसा ही उदाहरण आ रहा हो जिसमें भगवान के चरणों की वंदना की गई हो, तो आप अंतिम हेडिंग डाल सकते हो भाव साम्य। और भाव साम्य में आप कोई उदाहरण लिख सकते हो। तो बच्चों आया होगा समझ में, आपको व्याख्या करनी आई गई होगी। अब हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 की व्याख्या। चलिए देखिए, आपको ये पता होगा कि सूरदास जो थे वो सगुणोपासक थे, सगुण ईश्वर की आराधना करते थे। और सगुणोपासना के अंतर्गत वो किसकी आराधना करते थे? भगवान श्री कृष्ण की। तो प्रस्तुत पद में जो है निर्गुण ईश्वर की आराधना को निराधार बताते हुए सगुण ईश्वर के गुणों का क्या किया गया है? गान किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं अविगत, अविगत मतलब होता है जिसे जाना नहीं जा सकता। और जाना किसे नहीं जा सकता बच्चों? निर्गुण निराकार ईश्वर को। गति माने होता है स्थिति। सूरदास जी निराकार ईश्वर को निराधार बताते हुए कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसे किसी मीठे फल को खिला दिया जाए, तो उसके उस मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, वो क्या कर सकता है? अंतर मन से उसको महसूस कर सकता है, वाणी के द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे, उसी प्रकार उस परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है वो अंदर ही अंदर क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, संतोष का अनुभव किया जा सकता है, परंतु वाणी के द्वारा उसे व्यक्त किया नहीं जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, वो निर्गुण निराकार ईश्वर जो मन और वाणी से जिस तक ना तो पहुंचा जा सकता है और ना जिसे देखा जा सकता है, अर्थात जो इंद्रियों से भी क्या है? परे है। सो जाने जो पावे, उस ईश्वर के बारे में केवल वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, रेख का मतलब आकार, ना ही कोई आकार है, गुण माने गुण, ना ही उसका कोई गुण है, ना ही कोई उसकी जाति है, और ना ही कोई युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिससे उसको आसानी से क्या किया जा सके? प्राप्त किया जा सके। निरालंब कित धावे, निरालंब माने निराधार, निराधार ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार दौड़ना उचित नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से उस निर्गुण निराकार ईश्वर को अगम जानकर सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी जो हैं वो सगुण ईश्वर के पदों का गान करते हैं। बच्चों मुझे लग रहा है कि इसकी व्याख्या एक बार मुझे और पढ़ानी चाहिए, तो इसकी व्याख्या मैं एक बार और पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। बच्चों आपको पुनरावृत्ति के अंतर्गत भी आपको ये 2 पद जो मैंने आज पढ़ाए हैं इसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छी तरीके से SW की कॉपी पे करनी है। तो क्या कहते हैं सूरदास, पढ़िए इसकी व्याख्या। अविगत, अविगत का मतलब क्या होता है? निराकार, जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो। अविगति गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ कहा
नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति हो और उस गूंगे व्यक्ति को मीठे फल को खिला दिया जाए तो उसका जो आनंद है, उसके रस का जो आनंद है, अंतर्गत ही भावे, वो उसे अंदर ही अंदर हृदय से महसूस कर सकता है, वाणी के माध्यम से उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार उस निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति का जो आनंद रूपी रस है उसको अंदर ही अंदर महसूस किया जा सकता है और संतुष्टि का अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से जिस तक ना तो पहुंचा जा सकता है ना जिसे देखा जा सकता, अर्थात जो इंद्रियों से परे है, सो जानी जो पावे, उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में केवल वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन जुगति बिन निरालंब कित धावे, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर का जिसका ना कोई रूप है, रेख मतलब आकार, ना जिसका कोई आकार है, ना जिसका कोई गुण है, ना जिसकी कोई जाति है और ना कोई ऐसी जुगति माने युक्ति है जिससे उसे आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सके। निरालंब कित धावे, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार दौड़ना उचित नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी तरह से उस निर्गुण निराकार ईश्वर को अगम जानकर सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी जो हैं वो सगुण ईश्वर के पदों का गान कर रहे हैं। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। इसकी भी व्याख्या ऐसे ही करेंगे आप। सबसे पहले संकेत डालेंगे, संकेत के बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, प्रसंग, प्रसंग के बाद क्या लिखेंगे, व्याख्या, और व्याख्या के अंतर्गत क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य का पहला जो पार्ट होगा वो होगा भाषा, भाषा में क्या लिखेंगे, ब्रज भाषा। रस, इसमें भी जो है वो भक्ति रस है। छंद गेय पद ही है। अलंकार यहाँ पर जो है बच्चों अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद बच्चों शैली जो है वो मुक्तक है, यदि व्याख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भावात्मक शैली भी है। इसके बाद बच्चों भक्ति रस होने के कारण यहाँ पर कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में आपको। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे। Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and today's topic is outcomes of democracy. आज हम क्लास 10 के लिए इंग्लिश मीडियम में सोशल स्टडी का सिविक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। इसका मैं एक प्रीवियस वीडियो भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ जिसमें हम बता चुके हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने सबसे पहले आपको असेसमेंट्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बताया। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से जो आउटकम्स होते हैं डेमोक्रेसी के उसको हम 3 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। पॉलिटिकल आउटकम्स, कौन कौन से पॉलिटिकल आउटकम्स हैं जो हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं, फिर इकोनॉमिक आउटकम्स, और इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा सोशल आउटकम्स, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो नाउ अभी हम पॉलिटिकल आउटकम्स पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया तो फर्स्ट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल आउटकम निकल के डेमोक्रेसी का आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने लीडर को चूज करते हैं और वो जो है किस तरह से जो है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है और पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और वो पब्लिक के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में हमने देखा कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें मैंने बोला था कि इसमें जो है वो हम लोग एक तरीके से
पब्लिक ओपिनियन जो होती है उसका हम जो है वो उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसी के साथ साथ ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसपेरेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है वो राइट होता है, जिससे कोई भी पब्लिक या कोई भी कॉमन पीपल जो होते हैं वो किसी भी ऑफिस, किसी भी प्रोसेस को, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस या प्रोसेस है उसको अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो इजीली वहां से ले सकते हैं, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का उनके पास राइट होता है। इसलिए हम इसको ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है और डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ये लोगों को एक इस तरह की कंडीशन बना के दे देती है जिससे लोग अपने डिसीजन को आसानी से ले सकते हैं। एंड द थर्ड इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पर लॉज, रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट रन करती है, इसलिए हम इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पॉलिटिकल आउटकम्स थे जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इकोनॉमिक्स आउटकम्स, कौन कौन से इकोनॉमिक्स आउटकम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अब कहने को है कि क्या जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो रही है, क्या उस नेशन में इकोनॉमिक जो है वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है? क्या ऐसा है? ये चीज जो है वो आउटकम्स में निकलकर बाहर आती है कि क्या जो हमने देखा कि पॉलिटिकली जो है वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, तो क्या इकोनॉमिकली भी हम देखेंगे कि वो जो है सक्सेसफुल है कि नहीं है? क्या उसके जो भी इफेक्ट या जो भी इम्पैक्ट बाहर आ रहे हैं वो क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये चीज, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है कि जो भी किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट, वो सिर्फ वहां की गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। या हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है इसलिए वो इकोनॉमिकली ग्रोथ होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं जो कि तो हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ज्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। बट मेनी कंट्रीज क्या होते हैं इसमें फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होती है। जैसे पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की क्या पॉपुलेशन है उस पर भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है जब पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो क्या होता है किसी भी चीज में डेवलपमेंट ज्यादा आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी, भाई देखिए कभी भी कहीं पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो जो भी प्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री का, वो प्रोडक्शन पहले उसी कंट्री के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो तो प्रोडक्शन यही हो गया, तो फिर वो बाहर चीजों को एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। बहुत सारी ग्लोबल सिचुएशंस होती है जिन पे भी हमारा ग्रोथ और हमारा डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड होता है, क्योंकि जब तक कि ग्लोबल सिचुएशंस हमारे जो है वो फेवरेबल नहीं होंगी तब तक हम किसी भी तरीके से ग्रोथ या डेवलप नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा किसी दूसरे कंट्री के साथ में कॉपरेशन कैसा है, कौन सी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में कितना कोऑपरेटिव होती है, इस पे भी वो डेवलपमेंट डिपेंड करता है। पर इसी के साथ साथ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हम अपनी इकोनॉमी को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब कौन सी कंट्री अपनी इकोनॉमी को, हो सकता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो बट हो सकता है कि वो अपनी इकोनॉमी को इतनी प्रायोरिटी देकर न चल रही हो सकता है वो और किसी प्रॉब्लम्स में उलझे हो, वो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी देना, इसी के साथ साथ में आपका कॉपरेशन अदर कंट्रीज के साथ में, नेक्स्ट द पॉपुलेशन एंड ग्लोबल सिचुएशन, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा। तो हम सिर्फ एक डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है या उस पर वो चीज रुकी हुई है। एंड द लास्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है ऑन द कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की होती है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ में हमारा जो कॉपरेशन है, क्योंकि जब तक चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, और मोस्टली एक्सपोर्ट, जब हम चीजों को बाहर भेजते हैं तब हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी आती है और हम इकोनॉमिकली ग्रोथ हमारा होता है और हम डेवलप करते जाते हैं। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक आउटकम्स में कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है उसमें एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या डेवलप करने के लिए
बहुत सारी सिचुएशन की जरूरत होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे वो डिपेंड होती है। तो ये हमने देखा इकोनॉमिक आउटकम्स। एंड द नेक्स्ट इकोनॉमिक आउटकम्स का एक पॉइंट था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कहने को है कि जो इकोनॉमिक आउटकम्स है हमारा निकल के जो बाहर आ रहा है इकोनॉमिकली, वो क्या है कि वो इनइक्वालिटी को रिडक्ट करती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेसिक आउटकम है वो पॉलिटिकल और सोशली इक्वालिटी है सबसे मेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम धीरे धीरे इनइक्वालिटी को रिडक्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिडक्शन है इनइक्वालिटी, और पॉवर्टी भी मतलब रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक आउटकम्स में निकल के आ रहा है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें उस चीज को तो उसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। कहने को है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होती है। हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी है, सोशल इक्वालिटी भी है। अभी हम लोग सोशल आउटकम्स जब पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से क्या सोशल इक्वालिटी सिर्फ कहने के लिए है कि सच में ऐसा है। सो बट वी कैन सी, देखिए कहने को पॉलिटिकल इक्वालिटी है बट वी कैन सी ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग द इंडिविजुअल। बट अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो काफी तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। सिर्फ कहने के लिए है कि पॉलिटिकली इक्वालिटी हमको किसी भी नेशन में देखने को मिलती है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो हम देखेंगे कि वी कैन सी ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इंडिविजुअली, मतलब कि रिच और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय, जो भी अल्ट्रा रिच है वो एंजॉय कर रहे हैं अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर एंड ऑफ द वेल्थ एंड इनकम, वेयर इज द इनकम ऑफ पुअर इज डिक्लाइनिंग। हम देखेंगे कि जो पुअर की इनकम है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती जा रही है, और जो अल्ट्रा रिच जो काफी से नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हाईली जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपनी जो भी उनकी इकोनॉमिक उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। बट जो रिच है उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही है, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो आर नॉट टेकन पॉवर्टी ऑन अ सीरियस नोट। इसके साथ साथ जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो जो पॉवर्टी है उसको बहुत सीरियसली नोटिस ही नहीं करती, वो पॉवर्टी पे ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी चेयर के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में अपनी सीट के लिए वो इसमें जितना ज्यादा ध्यान देते हैं उतना वो ध्यान वो गरीबों पे या पुअर पीपल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। एंड इसका एक एग्जाम्पल भी बहुत है जो कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे चल रही है, वो पॉवर्टी में रह रही है। तो आज हमने पढ़ा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स एंड सोशल आउटकम्स। फर्स्टली मैंने आपको पॉलिटिकल आउटकम्स बताया जिसके पॉइंट्स में अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट था, ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग था, एंड द थर्ड इज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसी के साथ हमने देखा इकोनॉमिक आउटकम्स में, जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड द सेकंड इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। प्रैक्टिकली हम देखने को मिलता है कि जो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है वो सिर्फ देखने के लिए है, बट अगर हम देखें तो रिच और रिच हो रहे हैं, पुअर और पुअर हो रहे हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे ही डिपेंड नहीं करता, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पे भी डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।